of amplifier. This amplifier is different from other amplifiers. It is known as operational amplifier. So the main reason behind this operational word is because with this type of amplifier we can enhance the signal. That's why it is known as an amplifier. Any circuit which can be used to increase the strength of the signal is known as amplifier. This we have discussed in the last class. So why this type of amplifier is known as operational amplifier? Because this can enhance the signal as well as we can perform some mathematical operations. What kind of mathematical operations? Like integration of the input signal, like differentiation of the input signal. So some types of uh, mathematical operations we can perform using this kind of amplifier. So integration, differentiation, addition, subtraction. In the next classes, we will discuss about this integration, differential, and other mathematical operations much in detail. We will solve some small derivations to prove this, that the output of this type of amplifier is, uh, for example, if we are taking the circuit of integrator circuit using operational amplifier, then output will be the integration of the input signal. So if input is the sine, so what should be the output? If input is a sine wave, then what should be the output of the integrator? First we are sine का cos होता है. Minus cos. Yes, Minus of cos. yes, yes, yes. Minus of cos. Yes. So that we will see later. We will solve some derivation. From that, we will prove that the output is of the integrator is the integration of input signal. Okay. In the similar way, for will be some circuit arrangement that we will discuss in detail in coming lectures in this week. Okay. Addition. The circuit which perform addition using operational amplifier is known as adder. Adder using operational amplifier. What it will do, we will give two or more inputs to the operational amplifier, then output will be the sum of the input signals. Means if we are giving sine wave, 2-3 sine waves at the input side, then output will remain sine only, but that will be the strength of the signal will be the addition of the all three input sine waves. For example, if one sine wave we are giving 1 volt input, another is of 2 volt input, another is of 3 volt input, then at the output what we will get? We will get some output in proportional to the sum of the input amplitudes. So 6 volt sine wave. Okay. So now you need to write one line that operational amplifier is operational amplifier because it can perform different mathematical operations. Example, integration. मैम बैच क्लोज कर दी है मैम. What? मैम क्लास क्लोज कर दी है क्योंकि सुधाकर बाहर से ज्वाइन नहीं कर पा रहा. वो क्लास क्लोज करी है मैंने. नहीं, क्लास नहीं क्लोज की बेटा. तो क्लास का तो इनेबल है. ठीक है. हम उसका नहीं हो रहा है. लॉक मीटिंग नहीं नहीं हो रहा करी. एक सेकंड दोबारा लॉक करके अनलॉक करती हूँ मैं. मेरा क्लास ओपन है ना, मीटिंग लॉक भी नहीं है, वेटिंग रूम भी इनेबल नहीं है. मैंने सारा चेक कर लिया. या ये बाय डिफॉल्ट अगर हो जाती है तो मुझे नहीं पता. इसके सेटिंग में तो नहीं दिख रहा कहीं भी. पहले क्लास में भी ऐसे ही हो रहा था मैम. ज्वाइन नहीं हो पा मतलब रहा दैट था. मींस मेरा कुछ तो नहीं टाइम हुआ. होगा. फिर तो इसका मतलब है आपको कुछ टाइम होगा, उस टाइम के अंदर आपको करना है ज्वाइन. इसका ध्यान रखो. अभी हुआ ज्वाइन? नहीं. किसी ने अटेंडेंस लिस्ट अभी दी है ना? किसी ने? रजनीश मैम भी है. रजनीश ने अटेंडेंस. एक तो अटेंडेंस का आप लोग ध्यान रखो कि विद इन 5 to 10 मिनट्स तक जो अटेंडेंस आती है चैट विंडो में, सिर्फ वो ही हमारी काउंट होती है. हुआ एंटर क्लास में कोई जस्ट अभी? बहुत होता है. अभी क्लास में किसने एंटर किया है? अभी कोई तो आया है क्लास में. रजनीश. रजनीश. आवाज नहीं आ रही है मुझे.
मैं पहले से अच्छा रजनीश पहले से कह रहे यस हैं। मैम, अब चेक कर लूं मैम, मैंने अभी नोट डाउन कर रहा था इसलिए मैंने अटेंडेंस नहीं दी थी। अटेंडेंस टाइम से दिया करो बेटा, ठीक है? जब आप ओके मैम, नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लो। तो अभी किसको ज्वाइन करना है? सुधाकर को मैम। सुधाकर को। उसको बोलो दोबारा से ट्राई करे, कुछ और रीजन क्या शो क्या कर रहा है स्क्रीन पे, उसको बोलो वो व्हाट्सएप करे स्क्रीन शॉट लेके, तो देखते हैं क्या शो कर रहा है। उसको बोलो कि व्हाट्सएप करे ग्रुप पे क्या आ रहा है। मेरा भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। डिस्कनेक्ट तो बेटा मेरा भी बीच में कल हो गया था, वो तो हमारी अपनी पर्सनल इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है। कल मेरा भी पता नहीं नेट का कुछ इशू हुआ था और वो डिस्कनेक्ट हो गया था। और आगे भी क्लास में ध्यान रखना कि अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ इन बिटवीन क्लास, तो आप लोग क्लास में रिमेन रहना और मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी क्लास को। तो ये हो सकता है इश्यू मेरे साथ भी आपके साथ भी। सुधाकर को बोला कैसे हो गया? मैम बोल रहा पर्सनल कर दिया है उसने। किसको? मुझे? आपको जी। नेटवर्क कनेक्शन इज टू गुड, कांट कनेक्ट टू। बेटा ये तो प्रॉब्लम इसमें साफ साफ ये दे रहा है, कांट कनेक्ट टू अवर सर्विस, फेस चेक योर नेटवर्क। उसको बोलो कि जी मैम। सारा क्लोज करे ऐप सारा। चलो मैं ही लिखती हूँ उसको, रीस्टार्ट कर सकता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। क्या नहीं हो रहा? स्क्रीन मैम गूगल मीट से हम लोग क्लास क्यों नहीं लेते हैं? एक्चुअली पता है वो ऑफिशियली आएगा, गूगल मीट का भी शायद आ जाए, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हम लोगों को ये क्लास जो भी चल रही है इनकी मॉनिटरिंग है ना, तो वो जी मैम। कॉलेज लेवल पे वो एक ही प्लेटफॉर्म यूज होगा। तो जैसा इंस्ट्रक्शन जो भी आए, अगर जूम का रहेगा तो जूम से करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग इन्वॉल्व नहीं है इन क्लासेस में। यहाँ पे थोड़ा सा और भी इन्वॉल्वमेंट होती है चीजों की क्लास मॉनिटरिंग के लिए, तो वो सेम प्लेटफॉर्म ही रखा जाएगा। तो अगर जूम का मतलब कंटिन्यू करते हैं तो जूम करेंगे, गूगल मीट करते हैं तो गूगल मीट करेंगे, वो हमारे हैंड में नहीं है बस। वो थोड़ा सा इससे बेटर है मैम, वो उसमें ग्लिच वगैरह सारा इसमें यूज नहीं किया होता। है मैंने, मुझे पता है सारा यूज किया है मैंने। गूगल मीट यूज किया है मैंने, वेबएक्स यूज किया है, टीम्स यूज किया है, बहुत सारी चीजें यूज करी हैं इस पिछले 3-4 मंथ्स में। तो किसी में भी इशू नहीं है, सब अपना चल रहा है। अभी सुधाकर का देखते हैं, वो आता है ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ओके। क्या कर सकते हैं अब इस चीज में, ये चीजें नहीं है हमारे हाथ में। तो मैंने आप लोग को बोला था थोड़ा सा नोट डाउन करने के लिए, तो नोट डाउन किया आप लोगों ने इतनी देर में एक आध लाइन यस मैम। कि भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ हाई। हाँ, अदर एम्पलीफायर से एक और एडवांटेज है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कि इन कंपैरिजन टू अदर एम्पलीफायर्स गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज मच हायर। एक्चुअली हम अदर यूनिट जब पढ़ेंगे, यूनिट 2 एंड 3 भी, वहाँ पे हम अदर एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे, बीजेटी एम्पलीफायर पढ़ेंगे, मॉसफेट एम्पलीफायर पढ़ेंगे। तो उन एम्पलीफायर से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो मच हाई होता है। और इसका एक मैंने आपको बताया ये एडवांटेज कि एम्पलीफाई तो कर ही रहा है, साथ के साथ यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट ब्रीफ अबाउट ऑपरेशनल एम्पलीफायर कि इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किसी वाइवा में या कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली पूछ लिया जाता है, व्हाई दिस एम्पलीफायर इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो अब क्लियर है? किसी को डाउट को यहाँ पे इन दिस पॉइंट? नो मैम। बेसिक सा था। तो अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस about the block diagram of operational amplifier. So this is the block diagram of the operational amplifier. तो पहले ड्रॉ कर लो फटाफट से इसको, बस ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है चीजें। नहीं आ रहा है ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है मेरे में। जी क्या कह रहे हैं? ब्लैंक आ रहा है स्क्रीन।
ब्लैक आ रहा है, क्यों ब्लैक क्यों आ रहा है? बाकी की सबकी स्क्रीन ब्लैक मैम आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ मैम रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? मैंने वॉल्यूम बढ़ाया और स्क्रीन ब्लैक जो बता रहे हैं वो सबका स्क्रीन ब्लैक आ रहा है? नो नो मैम। तो अच्छा हमारे यहाँ 2G चल रहा है इसीलिए मैम। हाँ तो हो सकता है, कोई बात नहीं। इसमें ब्लॉक डायग्राम में 4 बॉक्सेस हैं, आप 4 बॉक्सेस बनाओ। 4 बॉक्सेस हैं यहाँ ब्लॉक डायग्राम में, और 4 बॉक्सेस वो मैं भेज दूंगी बाद में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्लास में भी जब हम करेंगे तो कुछ तो थोड़ा सा लिखते जाएंगे ना, ताकि हमें याद रहे। सिर्फ हम ये वीडियो जैसे देखते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, वैसा क्लास नहीं मैं चाहती कि आपने क्लास ले लिया, सामने अपना फोन रख लिया, अगर पढ़ भी रहे हो और बस सिर्फ सुन रहे हो, वो वाले से काम नहीं चलेगा। इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट्स नीड सम राइटिंग प्रैक्टिस, पता है ना हमें ये चीज। जैसे मैथमेटिक्स है, we cannot just see the video of mathematics, we need to do the sum and all. in the similar way electronics में हमारे क्या है कि मैथमेटिक्स उतना नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक डायग्राम्स आएंगे, फ्यू सर्किट डायग्राम्स आएंगे। तो हम जब क्लास में जब सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो हमें उसको बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हमें उसको याद रह पाएगा, प्रैक्टिस हो पाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ। तो अभी तो सबसे सिंपल डायग्राम है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑपरेशन एम्पलीफायर in which we are having सिर्फ ब्लॉक डायग्राम करना है ना? हाँ बस ब्लॉक डायग्राम, बाकी तो मैं समझा दूंगी। इन दिस वी हैव 4 ब्लॉक्स। सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं। वी हैव 2 इनपुट्स, वन इनपुट इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, मैं सब बताऊंगी डिटेल में कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अनदर इनपुट इज नोन एज इन्वर्टिंग इनपुट। तो these two inputs are different inputs। हम कह सकते हैं इसको कि इन्वर्टिंग इनपुट पे अगर मैंने कोई वोल्टेज दिया तो मैं उसको V1 कह सकती हूँ, और नॉन सॉरी मतलब V1 V2 तो आप कैसे भी ले सकते हो। नॉन इन्वर्टिंग में दिया मैंने V1 कह दिया, और इन्वर्टिंग पे दिया मैंने V2 कह दिया। तो these two are can be the different signals, okay? तो जो नॉर्मल एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे बाद में, उसमें क्या होता है, एक ही इनपुट होता है। जैसे जो कल मैंने डायग्राम दिखाया था, एक ब्लॉक डायग्राम, उसमें क्या था, एक इनपुट दिया था और उसी के रिस्पेक्ट में आउटपुट चेक कर लिया था। इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर वी हैव 2 डिफरेंट इनपुट्स। बेसिकली इसको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ बता रही हूँ। अगर मैंने इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर दिया है और इनपुट सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग में दिया है, तो जो आउटपुट होगा, जैसे मैंने अगर इनपुट क्या करा, इन्वर्टिंग को ग्राउंड करा और नॉन इन्वर्टिंग में मैंने कोई साइन वेव दी, जैसे कल दिया था, और इन्वर्टिंग में मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया, मतलब 0 मान लीजिए कि मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया, तो जो आउटपुट होगा, जो भी आउटपुट एम्पलीफाइड होगा, दैट आउटपुट विल बी इन सेम फेज विद द इनपुट। मैंने कल 2 चीजें बताई थी कि जो आउटपुट होता है दैट कैन बी इन द सेम फेज ऑफ द इनपुट, और दैट कैन बी आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज किसको कहते हैं? जो कल डायग्राम देखा था हमने, जिसमें 180 डिग्री का क्या था, शिफ्ट था। ठीक है, मैं एक काम करूंगी, आपको मतलब क्लास अटेंड करो बिल्कुल अटेंटिवली, ये सोच के कि अगली बार नहीं सुनने को मिलेगा ये, लेकिन फिर भी मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है ना क्लास की, वो मैं शेयर कर दूंगी आपको। बट ये मत सोचना कि जब रिकॉर्डिंग आई जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। अपना क्लास अटेंटिवली करो, क्लास अटेंड, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी कर दूंगी। यहाँ पे 2 चीजें हैं कि एक हो गया इन्वर्टिंग इनपुट, एक हो गया नॉन इन्वर्टिंग। शुभम पंडित, क्यों ये लाइंस ड्रॉ हो रही हैं बेटा? मैम ये बटन दबा हुआ था इसमें। कोई बात नहीं, सॉरी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में मैंने इनपुट दिया, तो जो आउटपुट है वो सेम फेज में, मतलब एम्पलीफाइड तो है लेकिन सेम फेज पे, इन द सिमिलर, इसलिए नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब समझ में आ गया कि जो इन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है? और कहाँ चलते फिरते क्लास अटेंड कर रहे हैं? छत पे। कोई कॉपी पेंसिल तो ले लेते हैं, मैं इतनी देर से कह रही हूँ कॉपी पे लिख लो। टॉर्य डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम। सारे काम क्लास के टाइम ही करने हैं तुम्हें छत के। नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इश्यू है तो कॉपी पेन लेके एक कोने में बैठ जाओ अपनी छत पे ही,
वहां पे क्लास कर लो। तो कॉपी नहीं दिखी मुझे तुम्हारे हाथ में, तब से मैं कह रही हूँ। मुझे मुझे नहीं पता, मुझे शाम तक सबका काम चाहिए, और मैं शाम से मैं शेयर नहीं करूंगी अभी, शाम के बाद शेयर करूंगी अपनी स्लाइड जब काम आ जाएगा सबका। ठीक है, दिख चलो। नहीं रहा है कुछ। अब वो दिख नहीं रहा बेटा, तो वो तो आपका है, किसी अपने फ्रेंड से बोल देना कि वो फोटो खींच के भेजेगा, और क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों में तो एक्सपर्ट हो आप लोग। चलिए फिर हम वापस आते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग मेरे ख्याल समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट का क्या कह रहे हो मनीष, शाफिया? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। प्रियांशु, स्क्रीन शेयर हो रही है? बस स्क्रीन दिख रही है? चलो फटाफट से जो लोग क्लास सुन रहे हैं मेरी ध्यान से, यस मैम यार स्क्रीन इसकी शेयर नहीं हो रही उनकी, नो मैम लिख दो फटाफट से, ताकि मुझे पता रहे जितने क्लास में बच्चे हैं वो सच में क्लास में प्रेजेंट हैं इस टाइम। प्रवीण, शाफिया को नहीं हो रही स्क्रीन शेयर, देवराज को दिख रहे स्क्रीन, यस। उपेंद्र, यस। शुभम पंडित, यस। मतलब मोस्टली को स्क्रीन शेयर हो रही है, बस से तो शाफिया को नहीं हो रही, तो मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू हो रहा है कि स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो मैं बता रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है 4 ब्लॉक्स बनाओ। तो 4 ब्लॉक्स में इनपुट पे 2 लाइन लगाइए। फर्स्ट इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, अनदर इज इन्वर्टिंग इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग मुझे लग रहा है मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत डिटेल में। अब मैं इन्वर्टिंग बताती हूँ। इन्वर्टिंग के केस में हम क्या करेंगे कि इसको हम ग्राउंड कर देंगे। तो जो आउटपुट इनपुट अगर हम इन्वर्टिंग में साइन वेव देंगे, तो जो आउटपुट आएगा एनहांस्ड, वो क्या आएगा, आउट ऑफ फेज आएगा। आउट ऑफ फेज मतलब 180 डिग्री एनहांस तो होगा, स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा विद रेस्पेक्ट टू इनपुट। ठीक है, ओके, क्लियर है पॉइंट? और फिर जो 4 ब्लॉक्स हमने बनाए जिनको स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, तो फर्स्ट स्टेज में लिखिए इनपुट स्टेज, सेकंड स्टेज इज इंटरमीडिएट स्टेज, थर्ड स्टेज इज लेवल शिफ्टिंग स्टेज, फोर्थ स्टेज इज आउटपुट स्टेज। फर्स्ट इज बसित एंड शाफिया आपके लिए बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेज इज इनपुट स्टेज, सेकंड इज इंटरमीडिएट, मैम नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करने पे आउटपुट क्या बताई थी मैम? नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया, मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ मैं बस आपको, और इन्वर्टिंग को कर दिया इनपुट दे दिया, तो जो आउटपुट आएगा एनहांस्ड आएगा, लेकिन वो क्या होगा, ये ऐसा होगा, आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, आउट ऑफ फेज मतलब कि जो सेम फेज में नहीं, आउट ऑफ फेज मतलब समझते हैं ना, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। यस मैम। तो बस ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। और अगर मैंने दोनों पे इनपुट दे दिए, अब एक डाउट ये भी तो है कि ये तो तब था कि जब एक को दिया और एक को नहीं दिया। अगर मैंने दोनों को इनपुट दे दिए, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा यूनिट में यही सब पढ़ना है हमको डिटेल में। तो अगर हमने दोनों को इनपुट दे दिया, तो डिपेंड करेगा मेरा आउटपुट सेम फेज या आउट ऑफ फेज, किस पे डिपेंड करेगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर मेरा नॉन इन्वर्टिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इन्वर्टिंग इनपुट की, तो जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इन सेम फेज। अगर मेरा नॉन इन्वर्टिंग की स्ट्रेंथ लेस है इन कंपैरिजन टू इन्वर्टिंग इनपुट, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आउट ऑफ फेज। तो जो फेज ऑफ द सिग्नल डिटरमाइन करेगा, अगर दोनों पे इनपुट देते हैं, तो फेज ऑफ द सिग्नल मेरा डिटरमाइन करेगा कौन, स्ट्रेंथ, तो भी इनपुट, स्ट्रेंथ हाँ स्ट्रेंथ इनपुट सिग्नल। तो ये एक बेसिक आइडिया था अबाउट मैम, दोनों सेम स्ट्रेंथ का दे दिया तो? दोनों को सेम स्ट्रेंथ का दे दिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वो चीज बताने जा रही हूँ। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, अभी जब स्टेज पढ़ाऊंगी ना पता चलेगा। जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, बेसिकली इसके जो इनपुट्स होते हैं दोनों, अब मैं इनपुट स्टेज बताना शुरू करती हूँ। तो अगर दोनों पे सेम स्ट्रेंथ का सिग्नल देते हैं, तो जो ये एम्पलीफाई करता है दोनों इनपुट्स का डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। जो इनपुट स्टेज होती है दैट इज बेसिकली अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज।
एक होती है चीज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जो हमारा डिफरेंस ऑफ दी टू इनपुट्स को एम्पलीफाई करता है। अगर मैंने दोनों इनपुट सेम दे दिए तो बताओ फिर क्या होएगा आउटपुट? 0। एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर हम दोनों इनपुट सेम देते हैं तो आउटपुट विल रिमेन 0 ओनली, बिकॉज देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है ये चीज, वी हैव हियर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये जो मल्टीपल आप स्टेजेस देख भी रहे हैं ना, तो ये मल्टीपल स्टेजेस ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। मल्टीपल स्टेज, फर्स्ट टू स्टेजेस खास तौर से, दीज टू आर दी एम्पलीफायर स्टेजेस ओनली। तो क्योंकि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, मैंने उसका बताया कि गेन बहुत हाई होता है, गेन हाई होने के कारण यहाँ पे क्या है, मल्टीपल स्टेजेस होती है। मल्टीपल स्टेज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एम्पलीफायर यूज किया A1, इसका कोई गेन होगा अपना, इस पे मैंने कोई इनपुट दिया, तो जो आउटपुट होगा उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग इतना आइडिया हो गया हमें एम्पलीफायर का। अगर मैंने इसके आगे एक और एम्पलीफायर लगा दिया A2, तो अब जो मुझे मिलेगा आउटपुट वो क्या होगा, और इंक्रीज मिलेगा, है ना। यहाँ पे इनपुट दिया मैंने, कोई एक एक्स सिग्नल मैंने इनपुट दिया, वो हाई हो गया, फिर A2 लगा दिया तो वो और हाई हो जाएगा। ऐसी मैंने अगर ऐसी कई सारी स्टेजेस लगा दी तो मुझे क्या मिलेगा, वेरी वेरी हाई गेन। तो यहाँ पे इनपुट स्टेजेस और जो है ये वाली, और जो इंटरमीडिएट स्टेज है, these two stages are basically containing multiple amplifiers. इस कनेक्शन को हम कहते हैं कैस्केड एम्पलीफायर्स। कैस्केड, कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है जब एक सर्किट का आउटपुट दूसरे सर्किट के इनपुट पे लगाते हैं, जैसे मैंने ये दो बनाए अभी आपके लिए, तो ये बोलते हैं कैस्केड स्टेजेस। क्लियर ये पॉइंट? तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एम्पलीफायर्स हैं जिससे मेरे को क्या मिल रहा है, वेरी वेरी हाई गेन मिल रहा है। बस इसके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं। बाकी लोगों को आ रहा है ना स्क्रीन? ठीक है। तो इनपुट स्टेज स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट स्टेज में क्या है हमारे पास, जो सबसे पहला एक फर्स्ट एम्पलीफायर होता है, दैट एम्पलीफायर इज नोन एज डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दिस इज DIFF लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL लिख लीजिएगा। तो दिस इज नोन एज डुअल इनपुट balanced output differential amplifier. So why it is known as dual input? Because here we are applying two different inputs. ठीक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, dual input. Balanced output means balanced output differential amplifier means कि आपको ये जो प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, जो आउटपुट होगा डिफरेंस ऑफ द सिग्नल को एम्पलीफाई करके देगा, इसलिए इसको हम डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर करते हैं। So what is the importance of this stage? Basically this provides most of the voltage gain, मतलब very high amplifier होगा, very high gain amplifier होगा तो most of the voltage gain provide करेगा। and amplifier के लिए 2-3 conditions होती हैं किसी भी। हेलो मैम। yes 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 अरे यार कुछ आओ ना। शुभम, नो मैम। कौन बोल रहे हैं, कुछ डाउट बताइए। बर्षित को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है नेटवर्क इशू के कारण। और किस कोई कुछ कह रहा था, क्या हुआ, कोई डाउट है? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एनी एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर है। 3 इंपॉर्टेंट में से एक मैं आपको बता चुकी, कौन सा बताओ, जल्दी से बताओ, रिस्पॉन्ड, क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है। एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर मैं एम्पलीफायर का बता चुकी हूँ। करंट नहीं, गेन बताया था मैंने।
कि कोई भी एम्पलीफायर आपसे कोई बात करेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ एनी एम्पलीफायर, तो फर्स्ट वन इज द गेन, ठीक है। सेकंड वन इज जो इनपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी हाई। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर मस्ट बी हाई। ये दो चीजें आपको रिमेंबर करनी होगी कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एंड जो आउटपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए फॉर आइडियल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। दिस इज नीडेड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग एंड ऑल अदर फैक्टर्स। तो इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट हो गया कि वोल्टेज तो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में गेन हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। तो फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेज वी हैव डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर and it provides the gain and it provides high input resistance. यहाँ सिर्फ input resistance लिखा हुआ है, here you can write one word that is high input resistance. आप नोट करोगे तो high input resistance लिखना। Next stage is the intermediate stages. Intermediate stages में हमारे पास क्या होगा, again more amplification के लिए हम use करते हैं intermediate stages को। Third stage is level translator और level shifting stage. एक्चुअली एम्पलीफिकेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डीसी लेवल होता है, ऐसे अगर हम बात करें ड्रॉ करके, जो डीसी लेवल होता है वो हमारा कई बार शिफ्ट हो जाता है ऊपर नीचे इस टाइप से। जो हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए था वो डीसी लेवल कई बार शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। तो हमारे पास थर्ड स्टेज होती है फॉर दिस कि वो डीसी लेवल को वापस लेके आ सके 0 पे। तो डीसी लेवल को सेट करने के लिए हमारे पास होती है ये थर्ड स्टेज विच इज नोन एज लेवल शिफ्टिंग स्टेज। फोर्थ स्टेज इज आउटपुट स्टेज, फाइनल स्टेज इसको हम बोल रहे हैं, दैट इज बेसिकली हैविंग मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ लास्ट स्टेज इज लो रेजिस्टेंस। जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होना चाहिए, आउटपुट स्टेज का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, शुड बी वेरी लो। तो आउटपुट स्टेज जो हमारा लो होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक पॉइंट जो इसमें स्लाइड पे नहीं लिखा है, इसमें लिख लीजिए लास्ट ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ, एक पॉइंट मैं बोल रही हूँ वो नोट डाउन कर लो जो इसमें नहीं लिखा है स्लाइड में। लास्ट ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एमिटर फॉलोअर स्टेज, एमिटर फॉलोअर स्टेज and it provides low output resistance and it provides low output resistance and it provides low output resistance। एमिटर फॉलोअर स्टेज का मतलब होता है कि आपका जो भी इनपुट है, आउटपुट मतलब आउटपुट स्टेज इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी गेन, गेन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जो इनपुट है दैट विल प्रेजेंट इज द आउटपुट बट विद लो रेजिस्टेंस। तो दिस इज द importance of last stage। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। मेरे पास अपने हैंड रिटन नोट्स भी हैं कुछ, मैं उसकी भी इस एक पेज है अभी, इसका फोटो खींच के अभी भेज दूंगी मैं ग्रुप में, ठीक है। उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करी हुई हैं चीजें और डिटेल में। ओके, सिलेबस कल मैं भेज चुकी हूँ आपको, सिलेबस कल मैं भेज चुकी हूँ। तो ये 4 स्टेजेस हो गई। 4 स्टेजेस भी कह सकते हैं, किसी किसी बुक में 3 स्टेजेस भी होती है। तो 3 स्टेजेस में हम लोग क्या करते हैं, आप ये फर्स्ट और 2 स्टेज को कंबाइन कर देते हैं। जो एम्पलीफिकेशन की स्टेज है वो हमारी पहली स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर की हो जाती है, दूसरी स्टेज हमारी गेन के लिए हो जाती है और लास्ट स्टेज हो जाती है एमिटर फॉलोअर की। तो दोनों ही डायग्राम सही है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिया हुआ है, लेकिन दोनों का पर्पस सेम है।